Welcome, students. Today, our topic of discussion is a new phylum, and that is Coelenterata, which is also known as the Cnidarians. So, let's see the basic characteristic features of the phylum Coelenterata. So, the animals belonging to this phylum are basically aquatic, they are mostly marine, sessile or free swimming, radially symmetrical animals. That means they are basically aquatic and mostly marine, means they live in sea water, ocean water, and they can be sessile, they can be of fixed nature, or they can be free swimming nature. Plus they are radially symmetrical. Radially symmetrical means that the animal can be cut into two equal halves from any plane. Okay, then the next characteristic is that the name Cnidaria is derived from the cnidoblast or the cnidocytes, which contain the stinging capsules or nematocysts. So coelentrates are also known as Cnidaria. Why? Because of the presence of characteristic cells in them, and those cells are known as cnidoblast cells or the cnidocytes. Basically, these cells are actually the stinging capsules. They contain the stinging capsules. Okay, and these cells are helpful for the animals in catching their prey or in providing defense against any other animal, any other sea creature. Okay, so that is the protective organ, also protective cell also. Plus they also help in capturing of the prey. Actually they use these cnidoblast cells to paralyze their prey. ठीक है, जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भरे होते हैं लिक्विड नेचर के, ठीक है, विच दे स्टिंग इन द बॉडी ऑफ द enemies or in the body of their prey, and that because of that chemical, that particular prey gets paralyzed, or that particular animal gets mildly paralyzed. Okay, so that is because of the presence of this poisonous cells, cnidoblast and cnidocyte cells, इस phylum को Cnidaria भी कहते हैं. Then the next is the cnidoblasts are also used for anchorage, defense and for the capture of the prey. ठीक है, तो एंकरेज मतलब कि अपनी पकड़ बनाने में भी काम आते हैं, प्लस डिफेंस के लिए और अपना फूड कैप्चर करने के लिए भी ये नाइडोब्लास्ट सेल्स काम आते हैं. Cnidarians exhibit tissue level of organization and they are diploblastic. Diploblastic means they are having two types of two layers, two germ layers, that is ectoderm and endoderm. Now this is a typical structure of a cnidoblast cell. You can see it is having a bag-like structure which is filled by poison or the chemical which is poisonous in nature, and this is the basic stinging apparatus of the cnidarians, and together this structure is called the cnidoblast cell. Okay, the orange color structure which you are seeing, that is actually the area where the poisons are filled, and there is a mechanism through which these poison can be spilled out of the cells and can be injected into the body of the prey. So this is the characteristic feature of the cnidarians. देन जो सिलेंट्रेटा वर्ड है वो कहाँ से आया है? दैट इज़ बिकॉज दे आर हैविंग अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. ठीक है, लाइक इन द स्पॉन्जेस के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. उसी तरह से सिलेंट्रेट्स में भी जो है वो बीच में एक खाली जगह होती है. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द एरिया ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. जैसे हमारे बॉडी में सेंटर में एलिमेंट्री कैनाल का एरिया होता है, वैसे इनकी बॉडी में खाली स्पेस होता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. और इसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की वजह से जो फाइलम का नाम है सीलेंट्रेट. तो सील वर्ड जो होता है, सीलोम से बना है, एंड सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी. ओके, देन दे आर हैविंग अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड द हाइपोस्टोम. जैसे कि स्पॉन्जेस में भी हैव सीन कि स्पॉन्जेस के ऊपर जो है सिर्फ एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जो माउथ और मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों का काम करती है, तो जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते थे. यहाँ पे हम जो माउथ पार्ट है उसका जो ओपनिंग है सिंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम. Then the digestion is extracellular also and intracellular also, means it can take place within the cell in the cavity, or among the cell in the cavity, or that can take place inside a particular cell.
क्योंकि उनकी बॉडी कैसी है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है डाइजेशन के लिए. देन सम ऑफ द नाइडेरियंस हैव एग्जाम्पल्स, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स. ठीक है, corals you almust be familiar with. There's a coral reef. The coral reefs are what? They are a collection of the different coelentrates of various colors. और एक्चुअली में जो उनका स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. ठीक है, तो they are a very having a very ecological effect also, or ecological significance in the aquatic या in the ocean and in the marine habitat. ठीक है. Then the next is, this is again the most characteristic feature of the coelentrates कि नाइडेरियंस जो होते हैं उनके दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा. ठीक है, दैट मीन्स दे शो पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, मॉर्फ वर्ड जब भी आता है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ फॉर्म. ठीक है, बॉडी फॉर्म. ओके, तो इसका मतलब नाइडेरियंस जो है वो दो बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो दो फॉर्म्स क्या हैं, एक है पॉलिप फॉर्म और एक है मेड्यूसा फॉर्म. ओके, पॉलिप फॉर्म क्या है, पॉलिप फॉर्म इज़ एक्चुअली द एसेक्सुअल फेज ऑफ द सीलेंट्रेट्स. जो एसेक्सुअल फेज होता है, ठीक है, सीलेंट्रेट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप. प्लस ये जो पॉलिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेसाइल नेचर के होते हैं. सेसाइल मतलब वो मूव नहीं करेंगे, वो एक जगह लोकेटेड होते हैं. प्लस दे आर सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड शेप, सिलिंड्रिकल शेप. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडाम्सिया. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू द फिगर ऑफ द हाइड्रा. You can see here, this is the structure, this second figure you can see, that is of sea anemone. तो sea anemone का structure देख सकते हैं कैसा, it is a rod like structure. Okay, you can see the structure here. This is a sea anemone. अब इसका structure देखो कैसा है, ये rod shape है ना. ठीक है, और ये जो ऐसे hair like projection, finger like projections है, ये एक्चुअली में क्या है, दीज आर द टेंटिकल्स. ठीक है, हर सिलेंट्रेट्स के पास जो है वो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स के पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स. ये टेंटिकल्स एक्चुअली में जो है वो फिंगर्स कह लो या आर्म्स कह लो, सिलेंट्रेट्स के होते हैं, जिनके अंदर खूब सारे क्या होते हैं, मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल्स लगे होते हैं. इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह का क्या है, डिफेंसिव ऑर्गन, जैसे फिंगर्स हो गए या आर्म्स हो गए, उसमें कई सारे नाइडोब्लास्ट सेल्स लगे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सी एनेमोन. यू कैन सी हियर कि ये जो बीच में ब्लैक कलर की ओपनिंग है, दैट इज़ द हाइपोस्टोम. ओके, and these finger like projections, they are nothing but they are the tentacles, जिनके अंदर सारे नाइडोब्लास्ट सेल्स लगे होते हैं, which are the stinging cells or the poisonous cells. और बॉडी कैसी है इनकी, that is the straight cylindrical shape. एंड यू कैन सी एट द बेस, ये जो बेस इनका कैसा ब्रॉड सा है, तो ये बेसिक अपने समुद्र के या सी या ओशन के बेस पे फिक्स करके रहते हैं अपने आप को, तो इसका मतलब वो सेसाइल नेचर के हैं. ओके, लेकिन दूसरा फॉर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ ओरेलिया. ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी कि यहाँ पे भी सारे फीचर्स हैं, इसमें टेंटिकल्स भी हैं. ठीक है, और नाइडोब्लास्ट सेल्स भी हैं, बीच में जो है वो नीचे की तरफ हाइपोस्टोम भी होगा. ठीक है, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज़ अम्ब्रेला शेप्ड. ये कैसा था, दिस इज़ वॉज सिलेंड्रिकल शेप, बट दिस इज़ अम्ब्रेला शेप्ड. ठीक है, तो ऐसे सिलेंड्री जिनका शेप कैसा हो, अम्ब्रेला की तरह हो, प्लस ये फ्री स्विमिंग हो, प्लस दे आर द सेक्शुअल, दे रिप्रेजेंट द सेक्शुअल फेस ऑफ द सिलेंट्रेट्स. ऐसे फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट्स को हम बोलते हैं मेड्यूसा. ठीक है, प्लूरल होगा तो मेड्यूसी, अदरवाइज मेड्यूसा. ठीक है, तो पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज होगा. तो ये सिलेंट्रेट्स जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो पॉलिप फॉर्म में रहेंगे कि दे विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग ओनली, मोस्टली दे विल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड, तो वो पॉलिप होंगे. एंड इफ दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय, प्रेफरेबली दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय सेक्सुअल मोड, तो दैट विल बी द मेड्यूसा स्टेज. ठीक है, तो
यू कैन सी। तो ये जो टू फॉर्म्स है इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कुछ सिलेंट्रेट्स जो है वो पॉलिप फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है वो मेड्यूसा। सो इफ़ यू आर आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, तो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज कि पॉलिप रिप्रेजेंट द एसेक्सुअल फेज, मेड्यूसा रिप्रेजेंट द सेक्सुअल फेज। पॉलिप्स आर सिलेंड्रिकल इन नेचर while medusa are umbrella shaped. Then polyps, they are sessile in nature, but medusa they are free swimming. And then you can give the examples like polyp, hydra and adamsia, the polyp forms, and medusa are, or example is aurelia, ठीक है। aurelia, physalia, many examples are there. But there are some cnidarians which exhibit both the form of polyp and medusa form, ठीक है, in an alternating manner. Like in the plant kingdom, we have studied that the plants can exist in two stages, sporophyte stage and the gametophytic stage, which alternates with each other, isn't it? तो दैट इज़ वॉज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो वहाँ पे जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में था। यहाँ पे जो ऑल्टरनेशन है सिलेंट्रेट्स में वो किसके बीच में, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा के बीच में। और इस फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम सिलेंट्रेट्स में क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो कुछ सिलेंट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों फॉर्म्स जो है आपस में अल्टरनेट करते हैं। मीन्स मेड्यूसा विल रिप्रोड्यूस सेक्शुअली टू produce the polyps which will reproduce asexually to form the medusae, ठीक है। तो ये दोनों स्टेज आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ द पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज। और ये बेसिकली एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ मेटाजेनेसिस इज ओबीलिया। एक सिलेंट्रेट होता है जिसका नाम है ओबीलिया, और ओबीलिया में जो है वो दोनों फॉर्म्स पाए जाते हैं अल्टरनेटिंग मैनर में, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलेंट्रेट्स। देन एग्जाम्पल्स आर फाइसेलिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया, द कॉमन नेम इज सी एनिमोन, Penatula, the common name is sea pen, Gorgonia, the common name is sea fan, Meandrina, the common name is brain coral. Now let's see the figure of some coelentrates. You can see this is the first figure is of hydra. You can see the rod like structure, isn't it? The rod like structure is there and it is having so many tentacles or the finger like projections. तो ये polyp stage है। और just second वाला is the aurelia. You can see it's so beautiful creature it is, and you can see the finger like projections are hanging down and it is having an umbrella shaped structure. So all those coelentrates which are having umbrella shaped structures are medusa form. They represent the medusa form, and the rod like structure is the hydra, that is the polyp form. You can see this is the figure of Penatula, which is also known as the sea pen, ठीक है। जैसे पहले feathers से जो है वो लिखते थे, feathers को हम यूज़ करते थे ना पहले in ancient period as pen, ठीक है। So you can see the structure is similar to those of pen. और जो हर इसका एक feather है, यू कैन सी देयर आर हैविंग वेरी टाइनी प्रोजेक्शंस, जो एक्चुअली में क्या है, नाइडोब्लास्ट सेल्स से पूरा कवर्ड अप है, ठीक है। और द फोर्थ फिगर इज़ ऑफ अ ब्रेन कोरल. यू कैन सी द शेप ऑफ दिस कोरल विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन, है ना। ऐसी सेल्साई गायराई होते हैं ह्यूमन ब्रेन्स में भी, और यहाँ पर भी यू कैन सी देयर आर सो मैनी कन्वोल्यूशंस इन द ब्रेन, लाइक इन द ब्रेन, इजंट इट। और ये जो येलो लाइनिंग्स बहुत ही माइन्यूट सी लाइनिंग्स है, दीज आर एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल्स। तो ज़रूरी नहीं कि टेंटिकल्स हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो और उसमें ही नाइडोब्लास्ट हो। कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनकी बॉडी में बिना टेंटिकल्स के भी नाइडोब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हाइड्रा में यू कैन सी दीज आर द टेंटिकल्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसमें जो है वो नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हियर यू कैन सी दैट देयर आर नो सच टेंटिकल्स, बट स्टिल वी कैन सी द प्रेजेंस एंड द अरेंजमेंट ऑफ द नाइडोब्लास्ट cells.
Okay, so this was all about the cnidarians. Then one thing more, corals. We were talking about corals. ठीक है, we all must have seen in Discovery or in the on the television this such type of structures at the bottom of the seas and the oceans, isn't it? So such beautiful creatures they are. So these are not plants, but they are actually the corals. And what are corals? Corals are nothing but they are different forms of coelacanths. Okay, you can see so many plant like structures are there, beautifully colored, but these all are the corals which are made up of they are having the skeletal system which is made up of the calcium carbonates. And actually coral also forms ecosystem, an ecosystem within itself, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम, so it is supporting so many fishes also, है ना. तो इकोसिस्टम क्या है? दैट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे सिलेंट्रेट्स भी हैं और हायर एनिमल्स भी है, तो एक तरह का ये क्या इकोसिस्टम बन जाता है. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? कोरल इकोसिस्टम. ठीक है. So a coral reef is actually an underwater ecosystem which is characterized by the reef building corals. Reefs are formed of colonies of coral polyps held together by calcium carbonate, and most of the coral reefs are built from stony corals whose polyps cluster in groups. So basically जो corals हैं ये polyp stage represent करते हैं.